Hello, everyone. Welcome to this another vibrant episode of Rachna, the Mind Architect Diaries podcast. This podcast is a safe place to share your thoughts, insights, and today it's going to be moving into a different zone. Today we have with us dietitian Srishti Arora, who is a dietitian and a health coach and has a vast experience in this field. We both are from East, connecting from East Delhi, and why today's episode is important because food definitely affects and has a deeper impact on our emotions. So what I will say that what is on our plate is actually going to tell us what's going on inside there, isn't it, Srishti? So first Right. of all, I want to welcome Srishti Arora. Thank you, Srishti, for inviting my podcast. And I welcome you wholeheartedly that you accepted it. And today we are going to have a lot of wisdom from you. So over to you, Srishti. Please tell our audience about yourself. Thank you, Rachna, for inviting me. It is even a pleasure for being with you. Before we proceed ahead, I would like to introduce myself. I am a dietitian. My qualification is Masters in Food and Nutrition, and I deal in all clinical issues, child nutrition, and psychology nutrition. You might have heard that dietitian only works on weight management. It's not like that. We work on the complete health on uh, with my diet and health issues. So we can cure all the issues with our diet. That's what I personally believe. Great, great. Good to hear that, Srishti, from you. So before I take some questions from you, Srishti, I want to ask कि what inspired you? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस निश में, इस सेगमेंट में काम करने की, और आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं? Well, after my 12th, I was just 17 years old and I joined my job with a company called Suddenly Cylinder. It was an American company and I was not pursuing my graduation at that moment of time. So there they were dealing into beauty and slimming, but they were more into beauty. So I personally realized with a few clients कि इनको ब्यूटी के रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं हम्म. बिकॉज इनको सर्टेन क्लिनिकल इश्यूज है, थायराइड है, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ में हम्म. बहुत ज्यादा स्ट्रेस था जिसकी वजह से उनको ब्यूटी में या वेलनेस इंडस्ट्री में या वेट मैनेजमेंट में हम्म. रिजल्ट्स नहीं आते. So ओके. that was the only reason of pursuing my bachelor's and master's in pure nutrition. Because I always wanted to cure clinical issues, and then I would like to talk about weight management. अगर आपके clinical issues ठीक हैं, तो weight management करना easy है. बट अच्छा. अगर आपको कोई इशू है, डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो उस केस में वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है या फिर हमारी स्किन या फिर हमारे बाल जो है वो भी काफी इफेक्ट करते हैं. So that अच्छा. was the only reason of doing my master's in food and nutrition, and I would like to deal with all clinical issues in that case. Great, great. Good to hear that. All right. So, Srishti, moving ahead, my first question to you is, what role does food play in our emotional health? Emotional health is very important. इमोशनल हेल्थ के भी दो पहलू हैं. एक ये पहलू अगर मैं स्ट्रेस हूँ या डिप्रेस्ड हूँ या फिर कोई मूड स्विंग हुआ है, चाहे वो हमारे पीरियड्स की वजह से हो या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, तो मेरा खाना मुझे इफेक्ट करेगा. मतलब आपने कई बार देखा होगा शुगर की क्रेविंग होना या फिर फैट की क्रेविंग होना, चिप्स खाने का मन करना, ये सब डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पर. तो इसकी वजह से भी हमारा फूड जो है वो इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. एक होता है कि हम अच्छा खा ही नहीं रहे, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है ही नहीं, और वो हमारी साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट कर रहा है या हमारे इमोशंस पे बहुत इफेक्ट कर रहा है. जैसे कि आपने कई बार बच्चों में देखा होगा, इफ आई डील विद किड्स दे आर मोर towards eating junk food. They always party with chowmein, Yes, burgers. yes. They are more prone to junk food than eating healthy. So उनकी इमोशनल हेल्थ या स्ट्रेस या फिर पढ़ने में ध्यान ना दे पाना, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं हमारी इमोशनल हेल्थ. ग्रेट, ग्रेट. गुड टू हियर दैट. और डेफिनेटली हम ये देखते ही हैं कि अगर हम बिंज ईटिंग को ले लें
या फ्रीक्वेंट ईटिंग को ले लें, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस के सिम्टम्स, एक एक फिजिकल सिम्टम्स इसके शो अप होते हैं कि अगर कोई पर्सन इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो वो कुछ पीस ढूंढता है, और वो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स ढूंढता है जहां पर दिल और दिमाग का कोऑर्डिनेशन वो बिठा सके। और वहां पर फूड इज समथिंग वेरी नेचुरल, कि घर में अवेलेबल है, चिप्स का पैकेट जी उठाया, कोल्ड ड्रिंक उठाई, कुछ भी खाना खा जी। चुके हैं फिर भी 3 बार 4 बार वो स्नैकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो माइंडफुल नहीं होते उस मोमेंट में कि हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान दें कि हम क्यों कर रहे हैं, वो एक्चुअली समझ पाएंगे इस चीज को। एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट वी बोथ आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिट ऑफ अवेयरनेस अराउंड इट, कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ बिंज ईटिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से डेफिनेटली कनेक्टेड है। I would like to share one of my client review in that या case. श्योर। My client lost 7 kg in 1 month. हम्म। Okay, and she was certainly depressed and stressed. But उसको ये हो रहा था कि सृष्टि आप मुझे डाइट अच्छी नहीं दे रहे हो। अच्छा। मैं ना बोर हो गई हूँ ये चीज खाकर। And हम्म। she was expecting me to give chola bhaturas and chowmin and pizzas and यार। burgers in diet. हम्म। And also certainly she would like to lose weight because she was stressed. She want to go for junk. तो वो अपने स्ट्रेस पे तो काम नहीं कर रही थी, मतलब स्ट्रेस के लिए कोई भी चीज नहीं कर रही थी रचना। एंड ना ही मेडिटेशन कर रही थी, ना काउंसलिंग ले रही थी। बट हम्म। एक फूड को उसने ना हैबिट बना दिया था कि अगर मैं बंजिंग ईटिंग करूंगी, मैं जंक फूड खा लूंगी, मैं फैट या शुगर खा लूंगी तो मैं मेरा सोल्यूशन निकल आएगा। निकल बट आएगा। वो भी ठीक नहीं है। हमें एक्चुअली काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, इंक्लूडिंग विद डाइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सृष्टि, सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डज अ चाइल्ड्स डाइट अफेक्ट देयर मूड एंड बिहेवियर? बच्चों की डाइट जो है उनके मूड और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है? See, kids' mood and behavior, one thing we need to understand that kids' behavior is certainly totally dependent on what kind of stress they have. There are certain students who have stress for education. There are certain kids who have stress for their parental abusive marriages. There are certain kids who have depressed with the kind of behavior people do with them. Might be एक बहुत स्ट्रिक्ट फादर है या बहुत स्ट्रिक्ट मदर है, उसका भी बिहेवियर जो है वो बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है। या अब्यूजिव मैरिज है, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तो बच्चे का बिहेवियर उसमें भी चेंज होता है। या पढ़ाई का बहुत बर्डन बच्चे पे आ गया है और उसको बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो होता क्या है, बच्चा फूड या तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा जब स्टॉप स्टॉप ईटिंग, या खाएगा तो बिल्कुल जंक फूड खाएगा। तो हमें एक्चुअली इस बात पे ध्यान देना है कि वो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो क्यों रहा है। क्या उसको पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस आ रहा है, वो हम्म। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा? क्या उसकी टीचर उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, या पेरेंट्स उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या अब्यूजिव मैरिज है, या सोशली वो इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको कोई फ्रेंड चला गया है जिसका वो बेस्ट फ्रेंड था एंड दे शिफ्टेड टू अनदर सिटी एंड ही इज नॉट बीन एबल टू एडजस्ट विद अदर किड्स। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर हमें फूड की बात करनी चाहिए बच्चे के साथ कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं। तो ओके। इमोशंस डायरेक्ट बच्चों की हेल्थ पर डिपेंड करते हैं। तो आसपास का माहौल भी पूरा बच्चे की फूड एंड बिहेवियर पर डिपेंड। क्या छोटी सी गाइडेंस सृष्टि इस वक्त आप हम शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के साथ की, छोटी सी बहुत मिनिमल चीजें, एक दो दो तीन चीजें जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं इसको, वो उनको थोड़ा गाइडेंस मिले, मदर्स को थोड़ा गाइडेंस मिले कि वो क्या फॉलो कर सकती है? तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज का है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है तो आप उसे फ्रूट्स खिलाना शुरू कीजिएगा, और फ्रूट्स भी प्यूरी फॉर्म में शुरू कीजिएगा, जैसे कि आलू है, आपका प्यूरी फॉर्म में दाल है। मूंग हम्म। दाल हम बच्चों को देते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूजी का हलवा बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स प्यूरी आप दे सकते हैं, मिक्स वेज सूप दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। केले की प्यूरी बनाकर आप बच्चों को दीजिए अगर बच्चा 6 महीने का हो गया है। और 6 महीने में अगर आप बच्चे को खाने की आदत डालेंगे तो थ्रू आउट लाइफ उसको खाने की आदत बन जाएगी। और अगर बच्चा बड़ा है, स्कूल जाने लगा है, तो कोशिश करिएगा कि उनके लंच में अच्छी हेल्दी चीजें दीजिएगा। दाल सब्जी पराठा रोटी ये सब चीजें आप दीजिएगा, बजाय कि मैगी या फिर कुछ ऐसा देने की बजाय जो जंक है। फ्रेंच फ्राइज हम बहुत देते हैं, मैगी बहुत देते हैं पेरेंट्स। बहुत। चीज अवॉइड करिएगा, चीला दीजिएगा, हेल्दी है।
चीले को आप पिज्जे की फॉर्म में छोटे छोटे चीले बना सकते हैं। उस तरीके का हेल्दी लंच दीजिएगा, और हमेशा अपने टीचर के कोऑर्डिनेशन में रहिएगा कि बच्चा लंच खत्म कर कर आए, क्योंकि अगर वो लंच खत्म कर कर आ रहा है तो टीचर जो सिखाएगी वो घर आकर भी बच्चा खाएगा। जैसे कि मेरी बेटी खा लेती है, बिकॉज वो स्कूल में इजीली टीचर उससे खाने के बारे में डिस्कस करती है। तो अगर जो आपका स्कूल में डिस्कशन होगा वही आपका घर में डिस्कशन रहे। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सृष्टि। मतलब पेरेंट्स जो मदर्स इसको इस एपिसोड को देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें बहुत सारी गाइडेंस मिल गई है कि कैसे छोट बचपन से लेकर के बड़े होने तक सभी चीजों के ध्यान रखें। और मेरे ख्याल से जो चीजें आपने बताई हैं वो अगर बचपन में तो ध्यान रखते ही रखते हैं, न्यूबॉर्न्स के साथ एक दो दो साल तक, उसके अलावा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एक्चुअली सभी एज ग्रुप तक वो चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा प्रिपरेशन में चेंज, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को हम एडअप कर लेते हैं। तो बेसिकली एक बेसिक नॉलेज मदर्स अगर ले ले, आपसे अगर ले लें स्पेशली, तो डेफिनेटली उनके बच्चों को वो बहुत सारी गाइडेंस दे सकती हैं। एक ओके। चीज का ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे मेरी बेटी को कर्ड पसंद नहीं, हम्म। प्लीज बच्चे फोर्स मत करो कि वो चीज खाए जो उसे पसंद नहीं एग्जैक्टली। है। खाए दैट इज इम्पोर्टेंट, घर का खाए दैट इज इम्पोर्टेंट, बट उसमें भी अगर बच्चे की कोई चॉइस है, जैसे अगर उसको पंपकिन पसंद है, कोई स्पेसिफिक दाल पसंद है, तो आप उसको दीजिएगा। और जो चीज नहीं पसंद, एक आधी चीज अगर वो अवॉइड करते हैं, तो दैट इज फाइन, दैट इज डिपेंड ऑन टेस्ट। हमें भी कोई फोर्स करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो हाँ। बच्चों को तो अच्छा है। ग्रेट ग्रेट। तो पेरेंट्स मदर्स इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे के टेस्ट को आप खाने में जरूर इन्वॉल्व करें, कि बच्चा जो भी खाना चाह रहा है, जैसा भी खाना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट करें, उन उन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके। माय थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू वुमेन ऑफ्टन क्रेव स्वीट्स और कंफर्ट फूड ड्यूरिंग स्ट्रेस? थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेस अलग अलग सिचुएशंस में होता है। हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। कई सिचुएशन ऐसी होती है जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, या वी हैव लॉस्ट समबडी, लाइक वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल इन कोविड-19 पेंडेमिक, या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हमको स्ट्रेस होता है। तो उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, एचपीवी जिसको हम बोलते हैं। और 1800 सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था। एचपीवी हमको सिर्फ सिर्फ स्ट्रेस में ही रिलीज होता है, और उस टाइम हमको स्वीट और फैट की क्रेविंग ज्यादा होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करिएगा, ताकि आपको स्वीट की या फिर फैट की क्रेविंग ना हो। और अगर आपको स्वीट की और फैट की क्रेविंग नहीं होगी, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। ओके। तो मीन्स अगर किसी को नॉर्मल क्रेविंग्स है तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो उसकी तरफ को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है, और वो भी एक कंफर्ट फूड की तरफ जी। लेके जा रहे हैं लोग, कि ये मिल देखिए, जाए अगर तो शायद। किसी लेडी को पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी नॉर्मल टू क्रेव फॉर स्वीट्स, that happens every month. So you don't need to go to doctor for that. That is very little thing. But if it is taking long term thing, कि आपको 6 महीने 3 महीने से स्ट्रेस है और आपको फूड की क्रेविंग हो रही है, स्पेशली स्वीट की, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और अ स्ट्रेस। ग्रेट ग्रेट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन इमोशनल ईटिंग बी पास डाउन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? जो इमोशनल ईटिंग है, क्या वो बच्चे से, मदर से पेरेंट बच्चे की तरफ ट्रांसफर होती है? डेफिनेटली यस। जो मदर स्पेशली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनकी इमोशनल ईटिंग बच्चे तक पास ऑन होती है, और उसी पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा आने वाले टाइम में कैसे फूड को चूज करने वाला है, उसकी क्रेविंग्स कैसे होने वाली। अच्छा। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आपने कई बार देखा होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन लेडीज को होता है, हाँ जिसमें कई बार ये पुराने टाइम में तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। तो लेडीज को जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता था, पीपीडी, तो लोग इस बारे में डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते थे कि मुझे स्ट्रेस हुआ है डिलीवरी के बाद। बट अगर आपको ऐसा हुआ है तो स्पेशली आप हेल्दी फूड्स पर रहें, वॉक करें, और इसमें मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और इसी पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका बच्चे से बिहेवियर कैसा रहेगा, या आने वाले टाइम में बच्चा फूड कैसा चूज करने वाला है।
क्योंकि हमारे ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट भी वैसा ही हो जाता है जैसा हम खाना खाते हैं। हम्म, और कॉलिक इश्यूज भी बच्चे को नहीं होते। तो जिन मदर्स ने अच्छा नहीं खाया ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, उनकी इमोशनल ईटिंग बच्चे के ऊपर टोटली इफेक्ट करती है। ओके। तो मतलब मदर्स भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो किसी इमोशनल ईटिंग फेज से गुजरी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है, तो वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, माइंडफुल रहें और कोशिश करें कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ थेरेपीज, कुछ थेरेप्यूटिक थिंग्स को आप फॉलो करें जिससे कि ये चीजें बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो। All right, Srishti, my last question for today is how can mothers help kids build healthy eating habits without pressure? Well, it's very important for us to understand that healthy eating habit comes from a healthy eating mother and a father. It Yes, doesn't come, if I start eating chow mein, pizza, momos, and I expect my daughter to eat ghia, tinda, tori, she'll start making faces because I make face on that. So it's very important for us to understand, stop making faces if something is cooked in your kitchen. And if you make face, child will definitely copy it. Also, a child will go out. If they start going to school, they will taste hell every junk food. So, start making junk food at home. Like, मैं क्या करती हूँ, जब मुझे चाउमीन की बच्चे को क्रेविंग होती है तो मैं उसको नमकीन सेवइयां बना के देती हूँ with lots of vegetables. hmm, So she eats it as a chowmin. If she asks for pizza, I make a dosa with lots of vegetables like a utpam, and she eats it as a pizza. And she craves for that, and she demands for that. So, great. क्रिएटिवली कुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को अगर क्रेविंग है, आप दीजिए, बट उसको माइंडफुली कुक करना एंड विदाउट मेकिंग फेसेस ऑन घिया, टिंडा, तोरी, लौकी। डोंट मेक फेसेस एंड स्टार्ट फीडिंग दैम। सो इफ यू ईट, चाइल्ड विल डेफिनेटली ईट दैट। Definitely. So, guys, आज के एपिसोड में सृष्टि ने हमारे साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारी विजडम उन्होंने शेयर की है कि खाना मदर से किस तरह से बच्चे में पास हो रही है हैबिट्स। बच छोटे बच्चे अगर है, न्यूबॉर्न है, तो कैसे मदर्स ध्यान रख सकती हैं और किन किन चीजों से फूड का कौन सा एलिमेंट हमें ये बता रहा है कि स्ट्रेस है, कौन सा एलिमेंट हमें ये बता रहा है कि वो स्ट्रेस के बिना है। तो सभी चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें और समराइज करें तो डेफिनेटली हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि फूड एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इमोशंस के साथ जो कि कनेक्टेड है। हमारी फूड हैबिट्स हमें ये बता रही हैं कि हमारे इमोशंस कितने स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, नहीं है, और हमें कितना उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इफ वी आर moving towards binge eating, if we are having a lot of food, lot of junk foods, and there are a lot of cravings around it, there is something connected with emotions and one needs to have a mindful check on it from where this behavior is coming. So please, as a psychologist, I can throw into some inputs that if something has happened with you in last 24 hours or last 1 week or 10 days, please observe that what is it that is making you disturbed, what is disturbing you, and think accordingly and be mindful in what you are eating. If you want to really track on it, keep a chart, एक दिन का आप अपना डिटेल फॉलो करें कि आपने पूरे दिन में सुबह से शाम तक क्या खाया और कितना आपने उसको उसको एनालाइज करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो आजकल बेसिक नॉलेज सृष्टि, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सभी लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस है हेल्थ के लिए कि कितने कैलोरीज हमें खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए। और अगर नहीं है तो सृष्टि हमारे पास है, आप उसके पास जा सकते हैं। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल कंसर्न है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, तो वी बोथ टुगेदर कैन हेल्प यू। बट the only agenda and the only purpose is to take care of yourself and take care of your emotions. That's very important. On this note, I want to close this today's podcast and thank you, Srishti, for sharing your wisdom with us today. Thank you so much. Okay, bye थैंक bye. यू। बाय।